Dear students, in the previous video lecture, I discussed the construction of power diode and I also discussed the IV characteristics of power diode. In this lecture, I am going to discuss reverse recovery characteristics of power diode. I will also discuss the classification of power diodes based on reverse recovery time. So let us see what is reverse recovery characteristics. It explains the switching behavior of diode from on state to off state. That means your diode is conducting. Now when the diode is made turned off, that means when the supply becomes zero or supply is reversed, then diode will stop conducting. So it explains the behavior of diode while the diode is switching from on state to off state. So let us see what happens here. See, when the diode is conducting, when the anode is carrying forward current, the charge carriers are still present when anode current becomes zero. When anode current becomes zero, these charge carriers are mainly due to minority charge carriers. What is the meaning of minority charge carriers? Since the diode is PN diode, here you see that the diode is PN diode, here P it is N. So for P, here the minority charge carriers are electrons and here minority charge carriers are holes. So when the anode current becomes zero, there are still some charge carriers present in the diode. That means there will be some electrons and there will be some holes present in the diode even after the anode current becomes zero. So now what will happen if the charge carriers are present? You see, hence in order to remove these charge carriers, the recombination process begins and diode starts conducting reverse current. In order to remove the charge carriers, अब इस चार्ज कैरियर को रिमूव करने के लिए रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस डायोड में स्टार्ट हो जाता है. रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है? रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस का मतलब है कि जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बचे हुए हैं वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करते हैं. तो जो वो एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन करेंगे उस केस में वो रिवर्स करंट फ्लो कराते हैं डायोड के थ्रू. सो दैट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ चार्ज कैरियर्स इन द डायोड. तो इस चार्ज कैरियर्स को रिमूव करने में कुछ समय लगता है, तो इसलिए इस प्रोसेस को कहा जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी प्रोसेस. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी प्रोसेस. यानी कि डायोड रिकवर कर रहा है
वो रिवर्स डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराकर। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिवर्स रिकवरी प्रोसेस। क्लियर? अब हम लोग रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करते हैं और वहां पर एक्सप्रेशंस को डेराइव करते हैं। सो लेट अस ड्रॉ द रिवर्स रिकवरी characteristic of power diode. So there we will see the complete behavior of anode current when the diode is made turned off. So let us see. Let us draw the axis. Suppose the diode was initially carrying a anode current. This is the axis for anode current. This is the axis for time. Suppose the diode was initially carrying some forward current and at time t equal to 0, the diode is made off. The diode is turned off at time t equal to 0. So now what will happen? You will see that this anode current will start decreasing and there will be a time, at this time the anode current will become 0. Now what will happen? Once the anode current becomes 0, some charge carriers are still present in the diode. Now to remove these charge carriers, recombination process starts and diode starts conducting in reverse direction. तो देखिए रिवर्स डायरेक्शन में डायोड कैसे कंडक्ट करेगा। ये कुछ यहां पर आएगा और फिर ये इस तरह से यहां पर इस तरह से जाकर एक करंट सेटल हो जाएगा। क्लियर? तो यहां पर देखिए जो ये करंट क्या है, यहां पर है IA इज इक्वल टू 0, IA इज इक्वल टू 0। यहां पर देखिए एक मैक्सिमम करंट आपको मिला है रिवर्स डायरेक्शन में। दिस करंट इज कॉल्ड IRM, दैट मींस मैक्सिमम रिवर्स करंट अक्रॉस द डायोड। और देखिए यहां पर अब टाइम ड्यूरेशन, चूंकि ये टाइम एक्सिस है, आप देखें टाइम ड्यूरेशन को यहां से यहां का टाइम को कहा जाता है T1। दिस टाइम इज T1। क्लियर? और यहां देखिए एक मैं टाइम यहां पर डिनोट कर रहा हूं, दिस टाइम इज T2। तो ये T2 टाइम क्या है? यहां पर देखिए जो करंट की वैल्यू होती है ये है 25% ऑफ IRM। यानी अगर IRM यहां पर 100 मिली एम्पियर है, यहां पर अगर IRM 100 मिली एम्पियर है तो यहां पर कितना होगा? 25 मिली एम्पियर का करंट होगा। तो ये टाइम को कहा जाता है T2, इस ड्यूरेशन का टाइम को। और ये टोटल टाइम जो आपको दिख रहा है, दिस टाइम इज कॉल्ड TRR, दैट मींस रिवर्स रिकवरी टाइम। रिवर्स रिकवरी टाइम TRR। तो पहले हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम को समझ लेते हैं। रिवर्स रिकवरी टाइम ये है TRR। ये टाइम कहां से स्टार्ट होता है? ये टाइम स्टार्ट होता है मोमेंट जब IA इक्वल टू 0 है, IA इक्वल टू 0 है, और ये कब तक जाता है? अप टू IA जब डिक्रीज कर रहा है, और कहां तक? IA बिकम्स 25% ऑफ IRM। IA becomes 25% of IRM. So this time is the reverse recovery time. This time is reverse recovery time. Now let us derive some expression for reverse recovery time. So let us see how to derive the expression for reverse recovery time. You see, here you can see this area. This is the area of the curve. This is the area of the curve. This is current axis and this is time axis. Now somebody is saying that QR amount of charge was stored in the diode. तो QR amount of charge को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? QR आप क्या जानते हैं? Q is equal to integration of I dt। तो I dt इंटीग्रेशन यहां से यहां तक इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व। तो अब यहां से यहां इस एरिया को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, इसे ट्रायंगल की तरह एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं ये ट्रायंगल की तरह एज्यूम कर लिया गया है अप्रोक्सीमेटली। और इस ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? 1/, यहां पर अगर इसका एरिया अगर हम देखें तो ये एरिया आपको मिलेगा 1/2 इंटू ये करंट क्या है? IRM इंटू TRR। ये टोटल टाइम है TRR। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज स्टोर्ड।
this is the value of charge stored 1/2 into IRN into TRR। अब हम लोग TRR को क्या लिख रहे हैं? TRR is equal to T1 plus T2। TRR is equal to T1 plus T2। TRR is equal to T1 plus T2। अब देखिए ये स्लोप क्या है? ये स्लोप को आप क्या कहेंगे? ये स्लोप है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ एनोड करंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस स्लोप को आप लिखेंगे DI अपॉन DT। DI अपॉन DT इस स्लोप को आप लिखेंगे। तो जब DI अपॉन DT लिखेंगे तो हम लोग अगर RN का एक्सप्रेशन लिखे यहां से तो RN क्या होगा? I RN इट विल बी इक्वल टू T1 into DI upon DT। You can write IRN equal to T1 into DI by DT, this slope। क्लियर? अब देखिए यहां पर एक और अप्रोक्सीमेशन किया जाता है। अप्रोक्सीमेशन क्या किया जाता है कि मान लिया जाता है कि T1 की वैल्यू बहुत कम है, T2 की वैल्यू बहुत कम है T1 के कंपैरिजन में। तो जब T2 की वैल्यू बहुत कम है तो वी कैन राइट सिंपली TRR is approximately equal to T1। TRR is approximately equal to T1। So when TRR is approximately equal to T1 तो इस इक्वेशन में हम लिख सकते हैं कि IRN is equal to TRR into DI upon DT। तो from here we can write TRR will be equal to IRN upon DI upon DT। या फिर इसे डायरेक्टली यहीं पर रहने देते हैं IRN is equal to TRR into DI upon DT। हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 क्या कह रहा है? QR is equal to 1/2 IRN के जगह आप क्या लिखेंगे? TRR into DI upon DT into TRR। तो यहां से हम क्या लिखेंगे? यहां से हमें मिलेगा QR इक्वल टू QR will be equal to 1/2 TRR square into DI upon DT। क्लियर? QR is equal to 1/2 TRR square into DI by DT। From here if you write the expression TRR square will be equal to 2QR divided by DI upon DT। So from here you can write TRR is equal to 2QR divided by DI upon DT to the power 1/2 to the power 1/2। So this is the reverse expression for reverse recovery time of power diode। This is the expression for reverse recovery time of power diode। क्लियर? अब हम लोगों को देखना है कि जो ये रिवर्स रिकवरी टाइम होता है ये मेनली किस पर डिपेंड करता है। आप एक लाइन क्लियरली नोट कीजिए कि रिवर्स रिकवरी टाइम डिपेंड्स ऑन एनोड करंट। यानी डायोड, कोई भी डायोड कितने अमाउंट का करंट कैरी कर रहा है इनिशियली, इसी करंट के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि कितना चार्ज ये डायोड स्टोर किया था। क्लियर? तो यहां पर लिखिए कि अगर IA ज्यादा होगा, इफ IA इज मोर देन QR विल बी मोर। और जब QR आपको ज्यादा होगा, QR अधिक होने का मतलब ये IRN भी ज्यादा होगा और रिवर्स रिकवरी टाइम भी ज्यादा होगा। देन IRN विल बी मोर एंड इफ IRN इज मोर, अगर IRN की वैल्यू अधिक होगी तो ये फिर क्या होगा? यहां से यहां डिस्चार्ज होने में भी समय लगेगा, टोटल TRR अधिक होगा, देन TRR विल बी मोर। TRR will be more। So reverse recovery time mainly depends on anode current carried by diode in forward direction। Clear? So this is the expression for reverse recovery time। Clear? अब नेक्स्ट देखिए कहा जा रहा है, आप जानते हैं कि TRR is equal to T1 plus T2। TRR is equal to T1 plus T2। अब एक यहां पर सॉफ्टनेस फैक्टर को डिफाइन किया गया है, सॉफ्टनेस फैक्टर। तो सॉफ्टनेस फैक्टर क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ T2 एंड T1। सॉफ्टनेस फैक्टर इज डिफाइंड एज T2 डिवाइडेड बाय T1। क्लियर?
अब बतला रहा है कि अगर ये वैल्यू कम हो, इफ सॉफ्टनेस फैक्टर इज वेरी वेरी लेस देन 1, अगर ये जितना कम हो सॉफ्टनेस फैक्टर, इसका मतलब क्या है, सॉफ्टनेस फैक्टर कम होने का मतलब T2 कम, T2 कम होने का मतलब ये बहुत जल्दी चार्ज को रिलीज कर दे रहा है, बहुत जल्दी इसका करंट 25% ऑफ IRM पहुंच जाएगा। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये डायोड फास्टली रिकवर हुआ है, दिस डायोड हैज बीन रिकवर्ड फास्टली। तो डायोड फास्टली रिकवर होने का मतलब क्या है, आप कह सकते हैं कि दिस डायोड विल बी कॉल्ड फास्ट रिकवरी डायोड। तो दिस विल बी कॉल्ड फास्ट recovery diode. If softness factor is very very less than 1, then the diode will be called fast recovery diode. Clear? अब हम लोग यहां पर एक टर्म को डिस्कस करते हैं, एस्ट्रे इंडक्टेंस। तो एस्ट्रे इंडक्टेंस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। एस्ट्रे इंडक्टेंस का मतलब होता है अनवांटेड इंडक्टेंस प्रेजेंट इन द सर्किट। So how the unwanted inductances are present in the circuit? Unwanted inductances are present in the circuit because of the wires. क्योंकि सर्किट्स में आप क्या करते हैं, कोई भी सर्किट्स बनाते हैं उसमें वायर्स रहता है, तो वायर्स के कारण क्या होता है, एस्ट्रे इंडक्टेंस प्रेजेंट होता है, एस्ट्रे इंडक्टेंस प्रेजेंट होता है बिकॉज ऑफ वायर्स। तो डायोड्स के साथ वायर्स भी लगे रहेंगे सर्किट में, उस वायर्स के कारण अनवांटेड इंडक्टेंस प्रेजेंट रहेगा। तो अनवांटेड इंडक्टेंस जब प्रेजेंट रहेगा, आपको इस एस्ट्रे इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डायोड के साथ साथ। तो यहां पर आपने इस एस्ट्रे इंडक्टेंस को LS से डिनोट कर दिया और इसको आप डायोड के साथ दिखला रहे हैं। क्लियर? अब क्या होता है, इंडक्टेंस के बारे में आप क्या जानते हैं, आप देखिए यहां पर जब इसके थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, when the current is flowing through this one and you know that the diode is being turned off, so what happens, you will see that the current is decreasing through this one, so there will be only forward voltage drop across this diode. Now what will happen at this point, see at this point what will happen, at this point if I am drawing the graph for forward voltage across the diode, so what will happen from here, you will see that there will be the voltage spike in reverse direction, there will be voltage spike in reverse direction, this is the voltage spike, there will be voltage spike in the reverse direction. So because of this voltage spike, ये voltage spike क्या कर सकता है डायोड को, this voltage spike is much enough to damage this diode, this voltage spike is much enough to damage the diode. So now if the diode is about to be damaged, then what you will have to do, you will have to make some arrangement in this diode so that the diode will not be damaged in the case of voltage spike. यानी आपको voltage spike को stop करना पड़ेगा, you will have to stop voltage spike. So how will you stop the voltage spike? Let us see. To stop voltage spike, मैं लिख रहा हूं to suppress dV upon dt. dV upon dt ही कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हम लोग क्या करते हैं, A RC Snubber circuit is used across the diode. Across का मतलब पैरेलल, across the diode, यानी एक आरसी स्नबर सर्किट का यूज किया जाता है हमेशा डायोड के अक्रॉस। देखिए जब भी आप पावर डायोड का यूज करेंगे वहां पर एक आरसी स्नबर सर्किट का भी यूज करना पड़ता है, आरसी स्नबर सर्किट, यही है हमारा आरसी स्नबर सर्किट। आपको ऑप्शंस दिया रहेगा आरसी स्नबर सर्किट्स का क्या काम रहता है, तो काम क्या रहता है, टू सप्रेस डीवी बाय डीटी और टू सप्रेस द वोल्टेज स्पाइक। तो वोल्टेज स्पाइक को रिड्यूस करने के लिए आरसी स्नबर सर्किट लगाएंगे। कहां लगाया जाता है, डायोड के पैरेलल लगाया जाता है। व्हाई इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, बिकॉज यू नो दैट कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज,
कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज इन वोल्टेज, तो इसी के कारण यहाँ पर कैपेसिटर्स को पैरेलल में लगाया जाता है और एक रेजिस्टेंस को ऑफ कोर्स हमें लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो ये रहा हमारा आरसी स्नवर सर्किट। आपको ये क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, तो वहां पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि आगे आप पढ़ेंगे, जब एससीआर पढ़ेंगे तो वहां पर आप पढ़ेंगे कि करंट को भी सप्रेस करने के लिए वहां पर आरएल स्नवर सर्किट को लगाया जाता है, एंड दैट आरएल स्नवर सर्किट इज कनेक्टेड इन सीरीज एंड आरसी स्नवर सर्किट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको पीएस भीमरा की किताब में भी दी गई है, पीएस भीमरा सर की किताब में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन एक साथ दिया गया है, आरसी स्नवर और आरएल स्नवर का। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पावर डायोड। क्लियर? This is all about the reverse recovery characteristic of power diode. Now let us see the next topic, that is classification of power diodes based on reverse recovery time. See the next topic, classification of power diodes classification of power diodes based on reverse recovery time। तो हम लोग रिवर्स रिकवरी टाइम के बेसिस पर डायोड को कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो बेस्ड ऑन द रिवर्स रिकवरी टाइम द डायोड्स आर क्लासिफाइड, power diodes are classified into three categories। तीन कैटेगरी में डायोड को क्लासिफाई किया गया है। पहला है हमारा जनरल पर्पस डायोड, दूसरा है फास्ट रिकवरी डायोड, एंड थर्ड वन इज शॉर्ट की डायोड। Based on reverse recovery time, the diodes have been classified into three categories. So first let us see the differences between these three categories. That means differences between these three types of diode. So let us see. We'll have to draw a table for this one. So now I am drawing the table for this one. यहाँ टेबल्स में ड्रॉ कर रहा हूं। पहला रहेगा हमारा पैरामीटर्स, दूसरा है जनरल पर्पस डायोड, नेक्स्ट है हमारा फास्ट रिकवरी डायोड, एंड लास्ट वन इज शॉर्ट की डायोड। क्लियर? पैरामीटर्स, तो यहां पर टोटल 5 पैरामीटर्स है जिसको कि कंपेयर किया जाएगा। पहला है रिवर्स रिकवरी टाइम, दूसरा है आई रेटेड, यानी कि करंट की रेटिंग क्या होगी, एनोड करंट की रेटिंग आई रेटिंग, तीसरा है वी, कौन सा वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, वी रिवर्स वोल्टेज, इसका चौथा है टाइप ऑफ डायोड, और पांचवा है हमारा एप्लीकेशंस, पांचवा है एप्लीकेशंस। तो पहला देखते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम कितना होता है। इफ इट इज जनरल पर्पस डायोड देन द रिवर्स रिकवरी टाइम इज TRR इज इक्वल टू 25 माइक्रो सेकेंड। 25 माइक्रो सेकेंड तक का रिवर्स रिकवरी टाइम होता है जनरल पर्पस डायोड में। दूसरा है फास्ट रिकवरी डायोड में, यहां पर है TRR इज लेस देन इक्वल टू 5 माइक्रो सेकेंड। क्लियर? और तीसरा शॉर्ट की डायोड है, ये और फास्ट होता है, इसमें रिवर्स रिकवरी टाइम जो होता है ये नैनो सेकेंड के ऑर्डर का होता है। दिस इज द ऑर्डर ऑफ नैनो सेकेंड। क्लियर? आपको दिखा पहला जनरल पर्पस डायोड 25 माइक्रो सेकेंड,
fast recovery diode 5 microsecond and Schottky diode of the order of nanosecond. दूसरा आई रेटिंग, तो आई रेटिंग इसका क्या होता है 1 एम्पियर टू थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर 1 एम्पियर टू थाउजेंड्स ऑफ एम्पियर, यहां पर होता है 1 एम्पियर टू हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर 1 एम्पियर टू हंड्रेड्स ऑफ एम्पियर, और यहां पर देखेंगे ये होता है अप टू 300 एम्पियर। क्लियर। नेक्स्ट है रिवर्स वोल्टेज कैपेबिलिटी कितनी होती है, तो रिवर्स वोल्टेज देखिए इसका होता है 50 वोल्ट टू 5 किलो वोल्ट, हियर इट इज 50 वोल्ट टू 3 किलो वोल्ट एंड हियर इट इज अप टू ओनली 100 वोल्ट। क्लियर। नेक्स्ट है टाइप ऑफ डायोड, ये किस टाइप का डायोड होता है, ये देखिए पीएन डायोड होता है। सेकेंड वन इज ऑल्सो पीएन डायोड एंड थर्ड वन इज एल्यूमिनियम सिलिकॉन टाइप। इसको हम लोग देखते हैं अभी क्या होता है एल्यूमिनियम सिलिकॉन टाइप। एप्लीकेशंस इसमें देखिए पहला जो डायोड है इसका एप्लीकेशंस कहां होता है रेक्टिफायर्स में। दूसरा फास्ट रिकवरी डायोड, इसका एप्लीकेशंस होता है इन्वर्टर्स एंड चॉपर्स, और तीसरा शॉटकी डायोड का एप्लीकेशंस होता है यूज्ड इन एसएमपीएस होता है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, इसको लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो ये हमारा डिफरेंसेज हो गया सारे डायोड्स का, अलग अलग 5 पैरामीटर्स को हमने देखा और हमने तीनों का डिफरेंसेज लिख दिया। क्लियर। अब हम लोग आगे देखते हैं कि फास्ट रिकवरी डायोड क्या होता है और शॉटकी डायोड क्या होता है, ये कैसे इस डायोड से जनरल पर्पस डायोड से डिफरेंट है। इसके साथ यहां पर एक एनालिसिस करिए आप यहां पर देखिए कि जो ये तीनों डायोड्स बनाए गए हैं, आप अगर पहला देखेंगे TRR रिवर्स रिकवरी टाइम, तो रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होना चाहिए कम होना चाहिए, तो सबसे बेस्ट कौन है ये शॉटकी डायोड सबसे बेस्ट है। क्लियर। और ये सबसे अधिक रिकवरी टाइम इसका है। लेकिन अब दूसरा करंट रेटिंग देखिए, आप देखिए कि जैसे ही आपने यहां पर रिवर्स रिकवरी टाइम रिड्यूस किया, करंट रेटिंग हैज बीन रिड्यूस्ड, इट हैज अगेन बीन रिड्यूस्ड इन शॉटकी डायोड। सिमिलरली वोल्टेज रेटिंग आप देखिए तो वोल्टेज रेटिंग भी रिड्यूस होता जा रहा है। नेक्स्ट ये तो टाइप ऑफ डायोड है, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशंस में देखिए रेक्टिफायर्स कम स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है, इन्वर्टर्स चॉपर्स में अधिक स्विचिंग फ्रीक्वेंसी का रिक्वायरमेंट होता है और इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है एसएमपीएस की। तो आप देख रहे हैं कि टाइम चूंकि रिवर्स रिकवरी टाइम रिड्यूस हुआ, हेंस फ्रीक्वेंसी इज इंप्रूव्ड। तो आप अगर किसी भी आप अगर पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज में अगर आप किसी क्वालिटी को इंप्रूव कर रहे हैं, देन यू विल हैव टू कंप्रोमाइज विद सम ऑफ द फीचर्स। तो यहां पर आपने देखा कि TRR बढ़ाने के लिए ये दोनों फीचर से आपको करंट और वोल्टेज रेटिंग से कंप्रोमाइज करना पड़ा। क्लियर। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फास्ट रिकवरी डायोड क्या है और दूसरा हम लोग देखेंगे कि शॉटकी डायोड क्या है। पहला लिख रहा हूं फास्ट रिकवरी डायोड। तो इन फास्ट रिकवरी डायोड layers are doped with gold or platinum. In fast recovery diode, layers are doped with gold or platinum. तो गोल्ड या प्लेटिनम से जब डोपिंग करते हैं लेयर्स की, तो यहां पर क्या होता है, it reduces the lifetime of चार्ज कैरियर्स। ये चार्ज कैरियर्स का लाइफ टाइम रिड्यूस कर देता है, और जब चार्ज कैरियर्स का लाइफ टाइम रिड्यूस हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिवर्स रिकवरी टाइम कम हो जाएगा। हेंस
reverse recovery time is reduced, hence reverse recovery time is reduced. Clear? दूसरा है हमारा शॉर्टकी डायोड इन शॉर्टकी डायोड क्या है? देखिए, शॉर्टकी डायोड इज ए मेटल सेमीकंडक्टर डायोड. इट इज ए मेटल सेमीकंडक्टर डायोड. शॉर्टकी डायोड एक मेटल सेमीकंडक्टर डायोड है, यानी कि हम क्या करते हैं, एल्युमिनियम लेते हैं और सिलिकॉन लेते हैं, मेटल और सेमीकंडक्टर को यहां पर एक साथ प्लेस करते हैं, तो यहां पर भी एक डायोड की तरह वर्क करता है, एंड दिस डायोड इज कॉल्ड शॉर्टकी डायोड. तो ये क्यों फास्ट होता है? यहां पर देखिए क्या होता है, इन दिस डायोड द कंडक्शन ऑफ करंट, या डायरेक्ट कंडक्शन लिख रहा हूं, कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स. मेजॉरिटी कैरियर्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही कंडक्शन होता है. यहां पर होल्स का रोल नहीं आता है करंट के कंडक्शन में. तो चूंकि होल्स का रोल नहीं आया, इसका मतलब आप कह सकते हैं कि ये डायोड क्या है, ये डायोड आपका यूनिपोलर डिवाइस है. ये डायोड आपका क्या है, यूनिपोलर डिवाइस. यूनिपोलर मतलब करंट का कंडक्शन सिर्फ और सिर्फ आपका मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण होगा, तो ये यूनिपोलर डिवाइस कहा जाता है. इन दिस डायोड द कंडक्शन इज मेनली ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स. तो आगे लिखिए, ड्यू टू absence of minority carriers, due to absence of minority carriers, the recovery process reverse recovery time is very much reduced. क्लियर? तो इस डायोड को शॉर्टकी डायोड कहा जाता है. क्लियर? तो आपने यहां पर देख लिया कि क्लासिफिकेशन ऑफ डायोड्स बेस्ड ऑन रिवर्स रिकवरी टाइम. क्लियर? अब हम लोग एक कंक्लूजन लिखते हैं. एक कंक्लूजन लिखिए. आपने डायोड के बारे में क्या देखा? डायोड के बारे में आपने देखा कि डायोड अगर आपके पास है, so you do not have any control over diode. If the supply voltage is decreased, or if supply voltage is reversed, or the supply voltage is made zero, then the diode will be automatically turned off. Clear? अब आपको कोई कह रहा है कि सर सप्लाई वोल्टेज हम दे रहे हैं इसको इस तरह से, और आप उस डायोड को यहीं पर टर्न ऑफ करके दिखाओ, इसी पॉइंट पर टर्न ऑफ करके दिखाओ, यहीं पर टर्न ऑफ करके दिखाओ. तो इस तरह का कोई भी कंट्रोल डायोड के ऊपर नहीं है. आप ये कह सकते हैं कि डायोड क्या है, एक अनकंट्रोल्ड डिवाइस है. आप कह सकते हैं, कंक्लूजन निकला कि पावर डायोड इज एन अनकंट्रोल्ड डिवाइस. पावर डायोड इज एन अनकंट्रोल्ड डिवाइस. दिस इज द कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक पावर डायोड. ये अनकंट्रोल्ड डिवाइस है. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे.